So we'll be having a quick recap first, what we have done, and some of you please help me. हमने कहाँ तक किए थे? I think perhaps this slide we had shown that in hypothesis testing, depending upon the sample size, we'll be calling it either as small sample or large sample. Saurabh, तू unmute करके रख, just confirm करते रहना, हाँ या ना में, I'll be referring to you, ठीक है? और some of the slides are changed, edited by me today morning. We'll be mostly having a small test or large sample test, and there mostly we'll be comparing the mean of different samples. Please see this slide we had discussed that when groups are small, that is 30 or less, we'll be calling a small sample test, and mostly we don't know standard deviation. I think this formula, please have a look on the screen. This I have added today, that is there in the QT handbook. This is for the small sample test, which I have not done. Today we'll be doing it. That will be called t-test. Okay, that we'll be doing it today. And this we had discussed when it is large sample, and if you know the standard deviation, you have two options. All of you listen to me carefully. I may go faster. If you are not clear, you can stop me. We can repeat it. One sample test, please have a mark. You got one sample and you got like population mean, the difference you're testing. This can also be applied to two samples. जैसे हमने बोले थे hero group, Honda group. So in that case, you are assuming that the both groups have equal mean. So mu1 equals to mu2. So you are testing two sample means. Here is one sample, here is two sample. Please mark the difference between the formula. When you have two samples, you have to use the second formula. So this slide I'll be sharing after the class. I have revised, I have taken this formula from the QT handbook. And from the last sample test, tell me, Saurabh, yes or no, this question we had covered. And this, I guess, like it was clear to all of you. And I guess like the first example also we had discussed. Intent place, yes, sir. Yes, sir. Okay, I don't know if we have done the next example 8.6. So 8.6 and one more we'll be discussing very quickly. This is similar. Can you please give a quick reading of this example 8.6, and one volunteer should explain me the case, what the issue is. Please read the question twice. Okay, I would request some of you, Amog, Ashwini, Samadhi, Bithal, thoda help karo today. We all will be helping each other. Can anybody volunteer? Jitna ho sake. Can anyone volunteer explain? A case hai kya? Kya karna hai? And if you recall, Sir, we have done. Sir, and एक बार सुन ले. जैसे हमने डिस्कस किए थे in the last class, we have to think and we have to discuss what is the issue as the decision maker. Who you are as the decision maker, और ये large sample A या small sample, and second point क्या है, one tail or two tail. ठीक है. 3 points please remember while discussing. First, discuss the case as if you are the decision maker, who you are in the case, that you don't forget. Second point,
you have to identify whether it's a large sample test. And third point, we have to clearly discuss, understand whether it is a one-tail test or two-tail test. Over to Amog. Sir, in this we are owner of a movie. Sorry, we are a director of a movie, and we need to see how popular our movies in apart from American theaters. So we take a sample of 75 theaters. So this will be a large sample test. And now the average in each city is 84, and when we calculated the average, it came out to be 81.5. So we don't. Number को बोल जा, issue बता. You are Yes, sir. addressing to Yes, your sir. friends. इसमें So what you want to decide? yes, sir. I want to decide if my movie is working or not, if it is popular or not, and if it falls below a particular number of dates, it will not be good. Okay, Ashwini, can you take over what Amog has started very well? इससे कुछ पता चलता है कि ये one tail होगा, two tail होगा, या not clear? I think it should be two-tailed case, because if it runs to less number of days, then it might be a problem. Okay, And if okay, it runs okay. Ansika, over to Ansika. Sir, it is a one tail test and a left tail test, sir. If it is Wow. less number of days, it will be a Wow. problem, but Wow. more number of Great. days will not be a Great, problem. great. Ashwini, listen to Ansika. It is not two-tail test, it is one-tail test. Thank you so much, Ansika. Salute to you. अरे you are distributor of movie. अगर तेरा मूवी ज्यादा दिन चलता है, you should be happy ना. If it is not running, not successful, you are critical, you are unhappy. ठीक है? So ये two-tail test नहीं होगा. Thank you, Ansika. All of you be clear. So this is one-tail test and left-tail test. You will be critical on lower side. Am I clear? सर वाई सर जेड वैल्यू निकलने से पहले भी समझ में आ जाएगा तो वन टेल या टू. Ansika, could you get the doubt of Samadip? थोड़ा clearly, easily, one-to-one Samadip को explain कर. Give a try. सौम्यदीप, जेड वैल्यू से पहले अगर हम क्वेश्चन ठीक से समझेंगे तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि एवरेज मूवी इतना दिन चलता है, तुम्हारा मूवी कम चलेगा तो अच्छा है कि ज्यादा चलेगा तो अच्छा है. तो एज ए कॉमन सेंस हमको समझ में आ रहा है कि कम चलेगा तो मुश्किल है, ज्यादा चलेगा तो अच्छा है. तो हम ये समझ सकते हैं कि कम चलेगा तो क्रिटिकल होगा, तो लेफ्ट टेल होगा. ओके. Are you happy, Samadip? Not fully happy. कम चलेगा तो लेफ्ट, नॉट फुल्ली हैप्पी बट थोड़ा सा. So number of weeks, number of days, movie chalega. You are maybe like the owner or director or the distributor of a movie. जैसे लेते हैं ना, suppose हिंदी movie का distributor rights, some companies they take, whether it will run in Gulf countries or not. You know that like there is a huge craze of Hindi movies, Bollywood movies in Gulf countries. और वो जो distribution rights के लिए बहुत सारे पैसा देना पड़ता है. And you have to pay in advance, and you have to have a prediction कि ये मूवी चलेगा नहीं चलेगा. So अंदाजा लगाना पड़ता है. So this is comes like estimation hypothesis testing. ये equally popular होगा कि नहीं? Say for example, Rajinikanth starrer movie. He is superhero of South India, and of course greatly appreciated all over India. Suppose you now try to have a Hindi dubbing of Tamil movie of Rajinikanth. Okay, Rajinikanth का जो popularity है, that is the benchmark. You can put it like a national average. So उस हिसाब से थोड़ा expectation बनता है. Can you venture? Can you take a business? So that is what coming to our mind. So when you have looked to the history of Rajinikanth starrer Tamil movie, कितना दिन चलता था? So वही हिसाब will it be applicable here in North India Hindi belt? So you apply to Indian context, okay? American context को भूल जाओ. So what Ansika has started well, so that we have to do it. Ansika, take over. इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? सर लार्ज सैंपल वाला, वो वन सैंपल. एक्स बार कितना?
सर एक्स बार मतलब जो एक्सपेक्टेड था, और नहीं एक्स एक्स बार मतलब जो है मतलब 81.5 सर। एंड म्यू 84। हाँ, तो कैसे लिखेंगे? न्यूमरेटर क्या होगा? 81.5 माइनस 84 का मोड हाँ डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन 10 हाँ, डिवाइडेड बाय 75 का रूट ओवर। वेरी गुड। और इसके बाद क्या होगा? सर इसके बाद इसका जो निकलेगा वो कैलकुलेटेड वैल्यू आएगा और फिर हम दिस उसको विल बी कंपेयर्ड विथ टेबुलेटेड वैल्यू। यहाँ टेबुलेटेड वैल्यू कितना? नहीं पता सर। 2.33। यहाँ 1%, 5% दिया है क्या? अगर कुछ दिया नहीं हो तो फिर 95% ले लेते हैं ना हम लोग। हाँ हाँ, Samadip, correct. बोल लेते हैं। If in question, if it is not mentioned, usually exam में mention होगा. If it is not mentioned, you are supposed to take according to your preference either 1% or 5%. 5% में कितना होता है आंशिका? One tail test 5%. 2.33. So 2.33 से कंपेयर करो। सौरभ, अगर कैलकुलेटेड वैल्यू टेबुलेटेड वैल्यू से कम होगा तो क्या करेंगे? व्हाट इज द डिसीजन रूल? सर 1% लेने से ज्यादा एक्यूरेट आएगा। कैलकुलेटेड वैल्यू ज्यादा होगा सर टेबुलेटेड वैल्यू से तो रिजेक्टेड हो जाएगा सर। हाँ, रिजेक्टेड का मतलब क्या है? मतलब सर वो थिएटर पे नहीं लगेगा, नहीं चलेगा। अमोघ, you can you please help me solve it within maximum 2 minutes? मेरे Yes, पास sir. बहुत सारे क्वेश्चन है सॉल्व करने के लिए। अंशिका, Yes, मैं, sir. सौरभ, बाकी लोग हेल्प करेंगे। फटाफट सॉल्व कर, जैसे अंशिका ने बताई। Yes, sir. सर So एक बार whiteboard म्यू share वाला करना है एक बार क्या? बोलेंगे सर? रिपीट कर एक क्वेश्चन। बार सर, एक बार में कौन सा मतलब लिया जाता है, मतलब क्या लेंगे और म्यू में क्या? Amog, don't wait. I am answering to Sayantan, but you go try to share whiteboard and solve. Yes, sir. Yes, sir. Anshika, address to Sayantan. यस सर। साइंतन एक्स बार में जो एक्चुअल वैल्यू है वो लेंगे और ठीक है, म्यू में जो actual। एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो लेंगे। ठीक है, ओके। Anshika, just look to the screen. जो अमोघ लिख रहा है वैल्यूज बता। Z equals to डायरेक्ट, हाँ, लिमा, गुड मॉर्निंग, टेल मी। गुड मॉर्निंग सर। सर ये सीवी का वैल्यू दिया है, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं है, ये क्यूमुलेटेड स्टैंडर्ड डेविएशन है ना, वो एक डाउट था। क्यूमुलेटेड स्टैंडर्ड डेविएशन कहाँ पर है? क्वेश्चन में था सर। फिर से पढ़ेगी? थोड़ा पढ़ ले, थोड़ा क्वेश्चन क्या लिखा है। मैं एक्चुअली स्टॉप शेयरिंग कर दिया ना, मेरे पास क्वेश्चन नहीं है। अच्छा, एक बार रुक जा। आई रिमेम्बर योर क्वेश्चन, आई विल गेट बैक टू यू। लिमा, प्लीज 1 मिनट। हाँ सर, श्योर। अंशिका, नंबर्स आर करेक्ट? यस सर। हाँ, कोई सौरभ कैलकुलेटर है, कर रहा है ना, क्या कर रहा है? जल्दी बोल। 2.16 Now रुक जा, अमोघ रुक जा। Now can anybody volunteer or answer what should be null hypothesis? नहीं, null hypothesis को क्या लिखेंगे? Null hypothesis Calculated value is less. So this calculated value is less than the tabulated value. So नहीं रे, रुको, So it is मैं क्या पूछ रहा हूँ ना, इनिशियली टॉप में हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि नल हाइपोथेसिस हमारा क्या होगा। कैन एनीबॉडी सजेस्ट? अमोघ, जहाँ लिखा रिजेक्टेड टेस्ट उसके ऊपर लिख। Yes, sir. सर नल हाइपोथेसिस होगा कि सर नल हाइपोथेसिस में हमेशा टू टेल होता है ना सर। ए रे, कहाँ टोटल? यहाँ लिख म्यू इक्वल्स टू, वो एक्सपेक्टेड वैल्यू कितना है अंशिका? 84। 84।
यस सर। इसका मतलब है, लेट मी एक्सप्लेन यू, अगर यू आर स्टार्टिंग ए न्यू वेंचर, रजनीकांत स्टारर मूवी को नॉर्थ इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो, इनिशियली क्या उम्मीद रहेगा सायंतन? सपोज यू, बोलिए बोलिए। हाँ, आपने सोचा कि रजनीकांत साउथ इंडिया में बहुत पॉपुलर है, और हाँ तमिल मूवी का मैं हिंदी में डबिंग करके नॉर्थ इंडिया में चलाऊंगा। सो यू आर नाउ गेसिंग, एस्टिमेटिंग कि ये कितना पॉपुलर होगा। तो इनिशियली क्या सोच रहेगा, क्या अंदाजा रहेगा? मतलब जितना दिन साउथ इंडिया में चल रहा है उतना ही। लगभग उतना रहना चाहिए, है ना? हाँ हाँ इनिशियली वी शुड स्टार्ट विथ कि कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। नल हाइपोथेसिस का बेसिक डेफिनेशन है नो डिफरेंस। सो इनिशियली यू हैव टू हैव ऑप्टिमिस्टिक थिंकिंग कि जितना था वही होगा। यस सर। You recall our last class, I think we had discussed example of bike mileage. So initially you have to accept ki what company is telling, that should be true. There is no difference between what you should observe and what company is claiming. So H0 जो अमोघ लिखा उसके आगे स्लैश दे के, अमोघ वही फर्स्ट लाइन में लिख स्लैश दे के, और अमोघ सुन रहा है? अमोघ सर उसका इंटरनेट लगता है चला गया सर। अच्छा सुनो, आया सर आया। यस सर, यस सर। और टॉप लाइन में लिख H0 को ऐसे भी लिख सकते हैं, और सर H1 होगा। 0 कोलन x बार, स्मॉल x बार इक्वल्स टू म्यू। एक्चुअली दिस इज द मीनिंग, सिमिलर मीनिंग ये भी लिख सकते हैं। इसका मतलब हम जो ऑब्जर्व करने जा रहे हैं वो एक्सपेक्टेड वैल्यू के साथ बराबर हो सकता है, वही उम्मीद रहेगा। ठीक है, नाउ कम टू द लास्ट लाइन। नाउ दिस इज लेस देन 2.16 is less than, this calculated value is less than tabulated value 2.33. So you are accepting null hypothesis? Yes sir, accepting null hypothesis sir. Accepting का मतलब क्या है? What conclusion you will be having? Null hypothesis correct. कि ये चलेगा। Yes sir. ठीक है। Now somebody was asking, अगर वो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अलग हो जाता है, आई थिंक अंशिका, व्हाट इज द अदर टेबुलेटेड वैल्यू? 1.645 सर अदर है सर 1.645। यस सर। हाँ, 1.645 में ये रिजेक्ट हो जाएगा। रिजेक्ट हो जाएगा सर। ठीक है। सो क्वेश्चन में, एग्जाम में ध्यान दो, whether it is at 1% or 5%, accordingly you have to have the conclusion. ठीक है, stop sharing. Amog, stop sharing. Now Lima, please tell. Lima. हाँ सर, सॉरी सर, मैं कॉरेस्पॉन्डिंग को क्यूमुलेटिव पढ़ लिया था। हाँ, तेरा कुछ गड़बड़ हो जाता है हमेशा। सकाल सकाल कौन पकड़ रे? ना सर। सकाल कौन पढ़ी तोर ना कौन? सर मैं भी उठिली सर। ओ बोलो वाला, सॉरी सर डिस्टर्बिंग यू। सर एक चीज पूछना था सर। हाँ बोल सर। वो जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो हम लोग यहाँ पे तो एज्यूम कर ले रहे हैं 1% हो रहा है। सर वो हम लोग तो 5% भी एज्यूम कर सकते हैं ना, मतलब उसका क्या समझ में नहीं आ रहा। हाँ वही तो डिस्कस किए ना, सौरभ बोल रहे क्या डिस्कस किए, तो सुन नहीं रहा है। नहीं सुना सर। हाँ सर, नहीं सर बोले कि अगर हम लोग अगर उस केस को कंसीडर करते हैं 1.645 वाले को, तो यहाँ पर ये रिजेक्टेड हो जाएगा। मतलब हम लोग को उल्टा हो जाएगा रे प्रांतिक, उल्टा हो जाएगा। हाँ सर वो समझ गया सर, लेकिन रिजेक्ट हो सकता है ना सर, तो हम लोग खाली एक्सेप्ट करने के लिए ही कर रहे हैं थोड़ी। नहीं, इसका मतलब है ये बहुत स्लेंडर मार्जिन में वो एक्सेप्ट हो रहा है। इसका मतलब एक्चुअली मैंने टाइम नहीं दे रहा हूँ। जैसे अभी हैदराबाद इलेक्शन हुआ ना, बहुत कम मार्जिन में वो जीत रहे हैं।
हाँ सर तो अगर वो जो परसेंटेज है, अगर यू आर वेरी रिजिड, जैसे हम कोविड वैक्सीन को बोले थे, ये 95% कॉन्फिडेंस है, 99% में क्या होगा? ठीक है, उतना भरोसा मंद है क्या? प्रांतिक समझ रहे हो? हाँ एग्जाम्पल सर, दिए हाँ सर, समझ फाइजर समझ गया। का जो एग्जाम्पल दिए थे हाँ हाँ लास्ट, हाँ ठीक है। ठीक है, थैंक यू फॉर आस्किंग। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक इट इज ऑलरेडी गिवन एट 1%, सो क्वेश्चन में ये आ सकता है। और लास्ट क्वेश्चन, आई डोंट वांट टू टेक मच टाइम, कैन एनीबॉडी वेरी क्विकली एक्सप्लेन द मीनिंग? जल्दी से पढ़ लो, so that we move to the next slide. विठल थोड़ा वॉलंटियर करेगा? विठल, गिव इट ट्राई। यस सर। 2 बार पढ़ लो। मनीमन, one should explain the meaning of the case. अश्विनी केतल उठिलु रे? अश्विनी हाई मारचु घरे कह कि चाय टिके हाई मारनी तो सर। हाँ 2 मिनिट तले 2 मिनिट तले मु मार्क करली फाइनल। Just 3 minutes back, I marked. Height assassin. Okay. Let's read the question carefully. Any volunteer? Sayantan, bol, take over. Here we have a electric bulb company. क्या टेस्ट कर रहा था? Bulb का brightness, how it is measured in lumens, okay? Lumens. So what would be interested? Bulb का brightness ज़्यादा हो या कम हो? What you are interested in? ज़्यादा हो. So it is why you are discussing Soumyadeep? ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं? ब्राइटनेस ज़्यादा हो बल्ब का, क्यों डिस्कस कर रहे हैं ये सब? मनीषा स्मार्टली बोल, जल्दी बोल। मनीषा बताओ ये सब क्यों डिस्कस कर रहे हैं? सर ताकि हम एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें पता चलेगा। अरे 1 टेल होगा या 2 टेल होगा रे? अच्छा 1 टेल लेफ्ट हो। हाँ समझा करो। ये नाउ दिस इज थर्ड एग्जांपल, फटाफट पिकअप करो। सो ये सौम्यदेव तू बोल, ये 1 टेल का लेफ्ट टेल होगा राइट टेल होगा? सोच के बता। सर 1 टेल का तो ये होगा लेफ्ट होगा, तो तभी ना एक्सेप्ट होगा। लेस देन टेबुलेटेड वैल्यू होगा तभी तो एक्सेप्ट होगा, और लेस होने से तो हमेशा लेफ्ट ही होता है 1 टेल लेफ्ट। अरे डियर ये लेफ्ट टेल होगा, क्यों होगा? ताकि एक्सेप्ट कर पाए, ताकि न्यू बल्ब इज प्रोड्यूसिंग स्पेसिफाइड का भूल जा रहे। हाँ ज्यादा ब्राइट मिले तो हम खुश होंगे। यू आर इन्वेंटिंग ए न्यूअर काइंड ऑफ बल्ब। अगर तुझे बढ़िया सा ब्राइटनेस वाला बल्ब मिल गया ना, तभी यू विल बी सेंडिंग टू द मार्केट। मार्केट का कोई बेंचमार्क है, स्टैंडर्ड है, यू आर टेस्टिंग ये भेजने लायक है या नहीं, ठीक है? सो अंशिका टेक ओवर। इसमें जानबूझ के just to confuse the student, some numbers are given. What is x bar? What is mu? सभी लोग ध्यान दो। Sir, x bar is 960 and mu is 750, I guess. x bar तो 954। x bar 954 होगा। x bar 954 and अंशिका, why confusion अंशिका? I was not expecting from अंशिका। ठीक से पढ़ना क्वेश्चन। हाँ सर, वो नीचे का नहीं देखी थी मैं। फिर से बोल। सर x बार 954 होगा और ये मीन 9 is अमोघ 960 होगा ना? 960 सर म्यू x बार होगा 954, म्यू नॉट 960 होगा। हाँ why 750 is given? सर 750 पहले का बल्ब का था, वो उससे इम्प्रूवमेंट हुआ है 960। Nobody should get confused। वो जो नंबर है उसको यूज नहीं करना है। That is just for confusing। If you are clear, confident,
only you are using two numbers. Ansika, repeat again clearly. X bar क्या है, mu क्या है? X bar 954 है और mu 960 है सर. Clear है ना? So I हाँ, think sir. it should not take time. It's a quite similar. Large sample or small sample? Large है. Large sample है sir. Very good. Large, 37. Thank you. Let's move. I think we'll be discussing this. Is it large sample? Is it something different or similar? Lima to answer quickly. This I have taken from my handbook, but I will not be solving. I'm leaving it for your self-study. Lima, jaldi bol. हाँ सर. Similar है, large sample test है, quite similar. Okay, one tail test. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अभी देखो ये. For the first time, we are discussing a small sample test. Yes. Now, all of you clearly read the case, and one of you should explain the meaning of the case first. Then we'll be solving together. All of you read the case question twice. Arpita and Alisa, get ready. You will be explaining. All of you read the question twice. आराम से पढ़ो. अंकिता बनर्जी है क्या? अंकिता है क्या? Yes sir. आज कुछ नहीं बोली. गुस्से में हो क्या? नहीं sir नहीं. अर्पिता या अलीसा, anybody, any volunteer, शुरू करो. So 15 branches it is given. So it is a small. Who are you? Alisha Nanda. You are not Alisa Nanda. You are Narendra Modi. Arey Alisa, I'll be asking the same question every class. Who are you in the case? Procurement officer. Procurement officer, Chief sir. procurement officer. Arey Alisa dear, you are the procurement officer who would decide कि ये मशीन सिटी स्कैन मशीन ठीक है या नहीं, कहाँ से खरीदेंगे. जो Yes sir. कंपनी जो दे रहा ना, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, यू आर टू टेक ए डिसीजन कि ये मशीन सही है नहीं. अलीसा डियर, व्हाट इज द पैरामीटर, व्हाट इज द बेंचमार्क? कब हम सोचेंगे, बोलेंगे, डिसाइड करेंगे कि मशीन ठीक ठाक है? अंकिता. Sir, I have a doubt sir. बोल. सर आप बोले थे सर मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन भी सर दिया रहता है क्या स्मॉल सैंपल टेस्ट में? वो बाद में डिस्कस करेंगे. तो आगे बिकॉज़ हियर इट इज गिवन. मीनिंग बोल के केस क्या है. सर in this case I am the chief procurement officer. मशीन को ठीक ठाक कब एक्सेप्ट करेंगे? कब? सर जब उसका एवरेज टेम्परेचर 110 फ़ारेनहाइट के ऊपर होगा, मतलब उससे खराब नहीं होना चाहिए, डैमेज नहीं होना चाहिए. I think from your section somebody was telling कि if it can withstand temperature, ठीक है, अगर ये चलता जाए kind of thing, ठीक है. So before it is getting crushed in Indian climatic condition, rugged condition, if the machine lasts for long, you will be happy. ठीक है ना अंशिका? So ये जो डिस्कस कर रहे हैं, इससे क्या इम्प्लाई, क्या हम समझते हैं? कि सर ये वन टेल टेस्ट है लेफ्ट. अंकिता, do you agree? Do you understand? सर स्मॉल सैंपल में तो सर लेफ्ट ये वन टेल टू टेल नहीं था सर, मतलब. कौन बोला?
अरे वो बाद में डिस्कस करेंगे, अभी बोलना वन टेल टू टेल है या नहीं। सर वन टेल्ड ही है क्योंकि सर लेफ्ट साइड, क्योंकि हम ज्यादा टेम्परेचर में अगर विथस्टैंड करेगा तो वी विल बी हैप्पी। फास्ट वो क्लैरिफाई कर रहे हैं, ये वन टेल टेस्ट है, लेफ्ट टेल टेस्ट है, ठीक है। अलीसा, इज इट ओके? Sir, I'm trying to understand still. ओके ओके। अर्पिता, इज इट ओके? सायंतन, इज इट ओके? वन टेल टेस्ट होगा? सर टू टेल होगा। नहीं वन टेल ही होगा। Okay, okay. The person who told two tail, maybe he is correct. कौन बोला two tail? फिर से बोल। सर मैंने बोला था। हाँ विठल, सोच के बता रहे, अगर मशीन जल्दी कम टाइम में क्रॉस कर जाता है तब तो हम अनहैप्पी होंगे ना विठल। If it lasts longer, if it runs in continuously for even if it is heated up and it can withstand higher temperature, it is running and running, then we'll be happy na, Vital? सर ज्यादा टेम्परेचर होगा तो फिर भी ज्यादा टेम्परेचर withstand कर पाएगा, वो जो मशीन का बॉडी जो हीट हो जाता है ना, तब भी ये चलेगा, चल पाएगा। ओके सर। If it runs, it's fine now, it's okay, no problem, ठीक है। Now coming to Ankita, I think she was asking about small sample test and standard deviation. Yes, sir. Somebody was asking standard deviation. Now, Sir, I was asking. If standard deviation is not known, we have got two options. We calculate ourselves standard deviation from the sample value. और सभी लोग को रिक्वेस्ट है, आप जो फॉर्मूला पेज है क्यूटी हैंडबुक में देखो, सैंपल से स्टैंडर्ड डेविएशन जब हम निकालेंगे, दैट फॉर्मूला इज ए माइनर चेंज, प्लीज मार्क इट, इट इज नॉट डिवाइडेड बाय 1 by n, it is divided by 1 by n minus 1. Okay, so that is the only difference, small difference, rest formula is okay. That is number one. Number two, if standard deviation is given but sample size is very, very small, then it is advised that we should go for t-test or small sample test. Okay. Ankita, am I answering your question? Yes, sir. Yes, sir. आगे बढ़ते हैं. Now, please see, this is a case of small sample test, t-test, और ये formula लेंगे. Now, जैसे मैंने बताया था, the only change in the formula is in place of sigma we are writing s. S is just to remind you कि यहाँ sample standard deviation हम use कर रहे हैं. Sample standard deviation may be given in the question or we have to compute it. सौरभ, अगर नहीं भी है क्वेश्चन में, कैसे कंप्यूट करेंगे सौरभ मित्तल? सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन अगर नहीं है तो कैसे करेंगे? सर वो जो टेबल से देखेंगे सर, टी टेस्ट का जो टेबल रहता है। नहीं सुन रहा था, तू मुस्कुरा था। यू आर नॉट लिसनिंग टू मी, यू आर स्माइलिंग, आई थिंक यू आर चेकिंग योर व्हाट्सएप मैसेज। आई एम ऑब्जर्विंग यू। अश्विन, कैसे करेंगे रे? सर कंप्यूट करेंगे सर, बोले ना सर टी वैल्यू अगर इस सैंपल नहीं दिया होगा। कोई नहीं सुन रहा। फॉर्मूला n माइनस, यस सर। अरे अमोगी, सौरभ को क्या हो गया रे? सर मिस हो गया होगा नेट। नहीं रे, मिस नहीं रे, वो मिस नहीं करता। ही वाज चैटिंग विथ हिज बेस्ट फ्रेंड। वो क्लास में तो अटेंड कर रहा है, कुछ और कुछ कर रहा है। अरे ध्यान दो रे, सुनो। सॉरी सर। सो ये जो है, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन नॉट गिवन, you have to get it done, you have to calculate it from the sample values observation. डाटा दिया हुआ है, वो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला अप्लाई करो। the only difference is divide by n minus 1, n नहीं n minus 1। ज्यादातर आप लोगों को क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डेविएशन मिलेगा, डोंट वरी, इन एग्जाम। ओके, नाउ दिस इज व्हाट वी हैव डन। से इट्स quite similar to last sample test वाला फॉर्मूला। ओके, सपोज यू आर गेटिंग -1.49, अमोक क्या करना पड़ेगा?
सर अब टी वैल्यू टेबल में चेक करेंगे सर। हाँ, ये जेड वैल्यू नहीं है, टी टेबल है। नाउ there is one called degrees of freedom. All of you write it down in your notebook. One new concept we are introducing for the first time, that is called degrees of freedom. All of you write degrees of freedom equal to n minus 1. All of you write that. Okay, here sample size is how much? Sir, degree of the freedom. Degrees of freedom. Degrees of freedom, Tara. Degrees of freedom is n minus 1. n कितना है अमोघ here? 20 है सर। So degrees of freedom would be 19. 19 sir. ठीक है. Now Amog, you have got T table. Can you share it? Yes sir, I'll share sir. All of you in the meantime open your own T table. जो अभी अमोघ शेयर करेगा उसको हम रेफर करेंगे। फर्स्ट कॉलम में देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम है। सो जहां 19 है वहां देखो 19 कहां पर है, कर्सर मूव कर अमोघ 19 के पास ये है। सो दैट रो यू आर रेफरिंग। ओके, सो नाउ टॉप में कितना है? सायंतन हेल्प कर रहे? हाँ सर, ऊपर को कॉन्फिडेंस लेवल दिया हुआ है 50, 80, 91। आई थिंक अंकिता वाज आस्किंग 1 टेल 2 टेल। अभी देखो ये 1 टेल वाला है और 1% टेस्ट करेंगे। क्वेश्चन में क्या दिया गया है? 99 अमोघ 99 में जा। नहीं रे सायंतन, ये क्वेश्चन देख, आर यू टेस्टिंग एट 1% और 5%? क्वेश्चन कोई देखो। 5%, 0.05 दिया हुआ है। 5% and 1 टेल टेस्ट। 1.729 हाँ 1 टेल टेस्ट 5% कहाँ है? 1.729 1.729. Very good. Who told 1.729? Thank you so much. सर सर ये तो सर 2.093 होना चाहिए ना सर? नहीं रे 1.729। अच्छा सॉरी यस सर। हाँ सर 1 टेल रहेगा तो अच्छा सर 1 पॉइंट, वो तो 2 पर टेल 1 टेल का 0.05 देख भाई। अमोघ तो 2 टेल का देख लिया। सभी लोग नोट करो, ये टैबुलेटेड वैल्यू है। दिस वैल्यू इज कॉल्ड व्हाट सायंतन? टैबुलेटेड वैल्यू। हाँ, so all of you write here the tabulated value at 5% level for 1 tel. All of you start writing in notebook. Muskan, here the tabulated value for 1 tel test at 5% level is found to be 1.729 from T table. Full stop. Amog, next sentence बता क्या होगा? Can you stop sharing? Yes sir. So वो calculated value कितना था सर? 1.49. Yes sir. So since the calculated value is less than the tabulated value, we will accept this. ठीक है, will be accepted in all of us. So machine is acceptable, right? So ये ध्यान रखो, इसको mod value में डाल के इसको plus लेना है, okay? So minus 1.49 should be written as plus 1.49, which is less than 1.73. ठीक है? सर ये ना एकदम समझ में नहीं आ रहा है। हाँ ठीक है, थैंक यू अमोघ। शुरू से कैन यू एक्सप्लेन टू ऑल एंड इन पर्टिकुलर टू समझ अमोघ? Yes sir. Sir, in this question, since we have small sample and standard deviation is given, so we will use t-test directly. Then we substitute the values and then we calculate the value to be 1.49. Now, since we have found this value to be 1.49, we'll go into our t table, and then for 5%, and since it's a left tail test, we'll look into the table and we'll check the value to be 1.729. Now, since the value is less than what we calculated, so we will accept this hypothesis. मतलब अगर 1.49 कम है टेबल के वैल्यू से तो हम लोग इस हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे, अगर नहीं होता तब रिजेक्ट करते हैं। ठीक है, समझे?
Somadev. सर 20 जो है ना सर 20 क्वेश्चन में दिया सर क्वेश्चन में है 20. हाँ 20 - 1 होगा ना. हमने बोले डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी n-1 बोले थे रे. हाँ सर लिखा था मैंने. हाँ सो 19 डिग्री ऑफ फ्रीडम को हमने देखे थे. ठीक है. हाँ ये फिर से रिवाइज करेंगे. डोंट वरी, फिर से रिवाइज करेंगे. ओके ओके सर. नेक्स्ट जो है ये वी कैन ऑल्सो एक्सपेक्ट क्वेश्चंस फ्रॉम 2 सैंपल वाला केस. उसमें न्यूमरेटर में विल बी यूजिंग 2 means. Okay, don't worry, we'll be using that. And these are the decision rules. ये हमने discussion किए थे. If the calculated value is higher than tabulated value, then we reject the null hypothesis. Otherwise, we have to accept the null hypothesis. Okay. और ये भी बोले थे टी टेस्ट कहाँ अप्लाई करेंगे. Now all of you very carefully note down. This is a very simple test. And side by side also a very important test from exam point of view and also from application point of view. Okay, we'll be using chi-square test now. I'll be solving 2 examples. So all of you listen to me carefully. If I'm going faster, if I'm not clear, please stop me or ask me to repeat. Sir, can I say one thing? Sir, can I say one thing? Sorry. Please tell. Sir, will you show the previous slide once? Little bit. Okay. ये वाला. हाँ. इसको भूल जा. अभी ये नहीं चाहिए. अभी ये नहीं Sir, चाहिए. mean 1 minus mean 2 क्या था ना? t equal to mean 1 minus mean 2 divided by. मैंने बोला था 2 sample case. ये स्लाइड को मैं दे दूंगा. आई विल बी गिविंग यू द स्लाइड. ठीक है. और मैंने बोला ना फिर से रिवीजन क्लास लेंगे. अरे ये स्लाइड मिल जाएगा रे. डोंट टेक स्क्रीनशॉट. ठीक है. अच्छा हाँ. सुन अभी से यहाँ से कंसंट्रेट कर. समझिए प्लीज यार. यहाँ से ध्यान दे. पीछे का भूल जा. अभी देख ये सिंबल जो है सभी लोग ध्यान दो. जो हम ऑब्जर्व करेंगे ऑब्जर्व वैल्यू को सिंबलाइज करेंगे O. जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उसको सिंबलाइज करेंगे E. हर एक इंडिविजुअल एक ऑब्जर्वेशन से रेस्पेक्टिव एक्सपेक्टेड वैल्यू का डिफरेंस लेंगे. वो न्यूमरेटर रहेगा एंड डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड वैल्यू. If you add all such ratios, that summation total is called chi-square. All of you listen to me. It is chi-square. No one should say chi-square. It is chi-square. Okay. And we'll be taking 2 numerical examples. Usually this chi-square test is applied to check test if 2 factors are related, associated, or is there any dependence or not. Also, it has got other applications like test of goodness of fit, test of homogeneity, but so far as our syllabus is concerned, we'll be having examples from the first type of application, that is test of dependence. Now please see, all of you read the question. This question I have taken from QT handbook, and I will be sharing this PPT soon after the class. All of you read the case, a small case, and one of you should please explain the meaning of the case. Can you all take a screenshot of this? I'll be using a whiteboard so that you all will be more clear. Please, all of you take screenshot. Can I use whiteboard? Can I stop share it? Saurabh? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
Hope my whiteboard is visible. Yes, sir. Yes, sir. Now all of you listen to me. कहाँ क्यों हम chi-square use कर सकते हैं? Suppose Raktim wanted to have a research study to know if educated parents' children are more intelligent or not. That is the hypothesis. I repeat, if educated parents' children are expected to be intelligent or not. That is, whether intelligence of kids has anything to do with intelligence of the parents. Okay, all of you listen to me. So what I can do, so I'll be first making a category of parents education level. Suppose I'll be putting like some less than graduate, maybe like graduate or postgraduate, and professionals, okay? Or you can put it like, say, less educated, mediocre, and highly educated. Is it making sense? Lima, you are there? Yes, sir. Please respond. Yes, Ankita and Lima, you are my representative. And here in this side, I'll put child's intelligence. Yes, sir. Okay. Similarly, say low IQ, mediocre IQ, and high IQ. Okay. High IQ. Now say, for example, I'll be observing few students. Maybe like I find here 10, 30, 50, and say 5, 30, 40, and here say 6, 60, 100. Now looking to the observation, these are called observed value. All these values are O values. Okay. Now Yes, looking sir. to the pattern data, what you can infer, Ankita? So I can infer that the highly educated parents has a highly educated children with high level of IQ. Very good, thank you. A correct, minute observation. I salute you, Ankita. Suppose had it been, suppose 100 and say 10 here, and maybe like something here. So when you are observing, ये हो सकता है, preliminary idea you are getting. But when you are adopting scientific approach of hypothesis testing, this is a sample. हमने क्या बोले थे last class में? Don't jump to conclusion by just checking the value. What you will be doing? You will be finding the difference. क्या Yes, मिला? sir. क्या expect कर रहे थे? And you divide it by the standard error. वो रेशियो को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड स्कोर और स्टैंडर्डाइजेशन. That standard score you have to compare with some tabulated value. Then only you should conclude. ये जो दिख रहा है, ये लग रहा है, लेकिन how to do it scientific testing. So for that, what we'll be doing, we'll be finding all row total and column total. This will be like a column total, and this section will be grand total. Am I getting? This will be row total, Yes. and row total. Are you getting my point? Now here, Yes, sir. हाँ बोल. सर उधर से 100 है कि सर मतलब पहले 10 था ना सर लेस वाला में. नहीं, मैंने चेंज कर दिया तो ओके सर. सिचुएशन चेंज करने के लिए. सपोज यू फाइंड कि पेरेंट्स हाईली एजुकेटेड हो बट चिल्ड्रन आर लेस इंटेलिजेंट. मैंने बोला सपोज यू आर गेटिंग 600 एंड यू आर ओनली गेटिंग 20. सो इससे पता चलेगा कि ये कोई रिलेटेड नहीं है. इवन हाईली एजुकेटेड पेरेंट्स दे हैव आल्सो चिल्ड्रन विथ लेस आईक्यू. ओके, अगर ये मिल रहा है, सपोज ये नहीं हो सकता है, आई डोंट नो. सपोज यू आर गेटिंग द एक्चुअल डाटा फ्रॉम ए सर्वे. Am I making clear, Ankita?
सो इस टाइप का टेबल को बोलते हैं, ऑल ऑफ यू राइट इट डाउन, कंटीजेंसी टेबल। And this is called how many rows, how many columns, Ankita? Sir, here. 3 rows, 3 columns. 3 rows. 3 rows, 3 columns. 3 columns. So it is called 3 by 3 matrix. 3 matrix, yes sir, 3 by 3 matrix. Very good. Matrix जो सौरभ बोला उसको हम कंटीजेंसी टेबल बोल रहे हैं। और ये जो 3 by 3 है, यहाँ से डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मिलेगा। प्लीज ऑल ऑफ यू रिमेंबर, इफ R is the number of rows and C is the number of column, all of you please write a formula in a notebook. R minus 1 into C minus 1 is your degrees of freedom. हमने टी टेस्ट में क्या किए थे सौरभ? n-1 लिए थे सर। हाँ, वेरी गुड। इन टी टेस्ट डिग्रीज ऑफ फ्रीडम वी आर रिटेन एज n-1। और यहाँ क्या किए सौरभ? R-1 into C-1 सर। हाँ, एक पॉइंट हमने ये बोले कि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कैसे निकालेंगे। नाउ प्लीज ऑल ऑफ यू लुक एट हियर। यहाँ जो स्टार मैंने लगाया, हर एक सेल में विल बी फाइंडिंग एक्सपेक्टेड वैल्यू। हमने बोले ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है, दीज आर ऑब्जर्व वैल्यूज। फॉर ईच डाटा वी हैव टू फाइंड एक्सपेक्टेड वैल्यू। नाउ एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला है, ऑल ऑफ यू राइट इट डाउन, रो टोटल into column total by grand total। ठीक है सर n-1 जो दिए सर, डिग्री ऑफ फ्रीडम का इक्वल टू n-1, वो क्या था सर? टेस्ट के लिए, ये टी टेस्ट के लिए, यहाँ नहीं है, ये टी टेस्ट के लिए हमने किए थे। ओके सर, ठीक है, ओके सर। Tara, I'll be taking one example, then it will be clear. Now जो example हमने अभी दिखाए, थोड़ा इसका मीनिंग डिस्कस करते हैं। Any volunteer who can very quickly explain? कोई बोल सकता है इसका मीनिंग क्या है? What are the two attributes, two factors we are trying to associate or link? Ansika, can you give a try, if possible? Sir, we are trying to attribute if the brand of toothpaste and the incidence of cavities are related or not. इसका मतलब ये है, जैसे आप लोग ने देखे होंगे, the toothpaste companies, they make tall claims, they advertise कि हमारा टूथपेस्ट यूज करने से ये होगा, it can check cavity, blah blah. All of you remember? So you are to verify whether cavity जो है, checking of cavity, has it anything to do with use of branded toothpaste? Repeat. We are testing whether is there any link, association, dependence between checking of cavity and use of branded toothpaste. What are the true attributes, Manisha? Sir, brand and frequency. नहीं रे, Raktim, what are the two attributes? Sir, C and Sir, the two attributes are competing brands and cavities. Checking of cavity and yes, sir. Use of branded toothpaste. Yes, Manisha, sir. Yes, sir. Manisha, whether you are using a good brand toothpaste or ordinary brand. Okay, so that is what you have to do. Now we have to verify कि branded toothpaste use करने से कैविटी चेक करने के लिए फायदा होगा नहीं होगा। ठीक है, सो यहाँ null hypothesis क्या लिखेंगे? अमोघ गेस करके बता। दो we have not discussed. The branded and cavity के बीच में there is a relation in checking of cavity. Ankita, your guess? Sir, no difference, sir. No dependence. सभी लोग ध्यान दो, यहाँ डिफरेंस वर्ड नहीं यूज करेंगे, नो डिपेंडेंस यूज करेंगे। रिपीट, Yes, there sir. is no dependence. Ankita's answer is much better than Amog. So no difference का जगह
we are writing no dependence, no association, no link. There is no link between checking of cavity and use of branded toothpaste. इसका मीनिंग क्या है अंकिता? इसका सिंपल मीनिंग क्या होता है? जो अस्यूम किया है, इसका सिंपल इंटरप्रिटेशन क्या होगा? सर सिंपल इंटरप्रिटेशन यही है कि ब्रांडेड टूथपेस्ट यूज करें या ना करें, कैविटीज होने का चांसेस है सर। नहीं, कैविटी चेक करने में वो ब्रांडेड टूथपेस्ट का कोई रोल नहीं है। यस सर, कोई रोल नहीं है। हाँ, वही समझा करो। सायंतन, इज इट क्लियर? हाँ, तो ये जो है, व्हाट आर दीज वैल्यूज? 9, 13, 17, 11. The number of cavities. Somadev. No cavities. Sorry, no cavities. अरे नो कैविटीज का मतलब क्या है? मुस्कान? तो कोई कैविटी नहीं होगा। Zero cavities. Observed value है सर। Observed value है। मुस्कान, explain what is 11. सर ब्रांड डी जो है उसमें अरे कोई गेस करके बोलो रे, स्मार्ट स्टूडेंट हो, पीजी स्टूडेंट हो, क्या है? सौरभ बोल रहे। सर ब्रांड डी का जब हम लोग लेंगे तो उसमें नो कैविटीज 11 होगा, मतलब सर हमारा जो पैरामीटर होगा वो 11 होगा सर, अगर ब्रांड डी लेते हैं तो। नहीं रे सर, जितने जन का कैविटी था उसमें से 11 लोग ब्रांड डी यूज कर रहे थे। हाँ देखो, लीमा ही स्मार्टेस्ट स्टूडेंट है। देयर आर अंशिका। अच्छा, कितना बोली? अच्छा, लीमा को मैंने ऐसे ही प्रेज कर रहा हूँ। नहीं, लीमा भी स्मार्ट है। अच्छा सुनो, जो जितने लोगों का सर्वे किए हैं ना, उनमें से इसको ग्रांड टोटल कर सौरभ, ये रो टोटल कॉलम टोटल तू कर कैलकुलेटर लेके नोटबुक में डाल। बाकी लोग ध्यान दो। When I am asking what is 11, अंशिका सुन रहे, there are 11 persons who use brand D and they had no cavity. ठीक है अंशिका? Similarly, what is 37? Sir, who use brand D, among them 37 had who use brand D, but they had high cavities, more than 5 cavities. ठीक है सौम्यदीप, सुन रहा है? हाँ सुना हूँ। ये 70 का क्या है मीनिंग? क्या है बोल? 70 का मीनिंग है मतलब जो लोग ब्रांड बी का टूथपेस्ट यूज कर रहे हैं, there are 70 persons who use brand B toothpaste, but they had 1 to 5 cavities. ठीक है, ये मीडियम रेंज कैविटीज है, ये हाई रेंज कैविटी है, ये नो कैविटीज है। ठीक है, सो डाटा को समझा करो। अंशिका, ये जो है वैल्यू, ये ओ वैल्यू है। हाउ विल यू फाइंडिंग ई वैल्यू? ये 9 का ई वैल्यू कैसे करेंगे? सर रो टोटल बाय कॉलम टोटल divided by grand row total total into column total divided by grand total sir. हाँ, ग्रांड टोटल कोई ऐड किया? ग्रांड टोटल सर 500 वाओ। अमोघ कर पाएगा? अमोघ? यस सर। ये स्क्रीन शेयर कर। यस ये टेबल बना, ये जो वैल्यूज है ना, कोई बोलेगा तो ये टेबल कर। इसके आगे देख, कर्सर दिख रहा है? इस टाइप का टेबल बनाएगा और एक और कॉलम ऐड करेगा। यहाँ लिखेगा सीटी कॉलम टोटल, और एक और रो ऐड होगा जहाँ लिखेगा आरटी, और यहाँ जो होगा ये लास्ट सेल होगा ग्रैंड टोटल। और ध्यान दो सभी लोग, यहाँ स्पेस होना चाहिए, इसमें वैल्यू डालेंगे। यहाँ छोटा सा बॉक्स करके इसमें एक्सपेक्टेड वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, समझा ना अमोघ? आई विल हेल्प यू। यूज व्हाइट बोर्ड, जल्दी कर। सायंतन या अंशिका, नंबर अमोघ को बोलो, हेल्प करो। यस सर। No cavities, or 1 to 5 cavities. शॉर्ट में लाइक 1 to 5, जस्ट शॉर्ट में लाइक वो छोड़ दे। And more than 5, greater than 5 कर दे। हाँ, छोड़ दे। अब A B C D कर दे ऊपर। हाँ बस, थोड़ा जगह छोड़ना था ना। हाँ राइट।
बाकी लोग ऐसे ही लिखते रहो। नेक्स्ट इज कलर चेंज करके थोड़ा कलर चेंज कर ले, आरटी सॉरी Yes. ये सिटी होगा रे, नहीं सॉरी सॉरी, आई एम सॉरी, नहीं आरटी होगा तो सॉरी, थैंक यू Sir, वैल्यू शांतन बोल रहे, वैल्यू स्टफ हाँ ब्रांड का वैल्यू है 9। एक सेकंड सर, पेन खराब हो गया सर। अच्छा एक सेकंड। यस सर, यहाँ पे कॉलम टोटल हो जाएगा ना, सिटी। हाँ कॉलम टोटल। यस सर। ये वैल्यू डाल के लाइन भी खींच। यस सर। यस वेरी गुड। हाँ नंबर बोल रहे शांतन। भाई 9 नहीं अरे सुन, बीच में मत लिख, एक कर्नर में लिख। हाँ ओके सर, एक सेकंड। अच्छा लिख ले। 9 13 बी में 13। अरे नहीं बी में 13 होगा। बी में 13 भाई सॉरी। रो वाइज बोलना। रो वाइज चल, ये 9 के बाद 13 होगा। रुक जा रो वाइज बोलना। हाँ 9 13, अरे यार ये सर 13 17 11 टोटल बोल दे। 50 नेक्स्ट फटाफट बोल। 63 70 85 82 300 28 37 48 37 150। और सुन ये अमोक कलर चेंज कर दे, जो कॉलम टोटल लिखेगा ना, टोटल ब्लू कलर कर दे। टोटल बोल रहे शांतन, जल्दी बोल। 100 कितना 120 150 फिर 130 500। हाँ अमोक सुन, 9 के पास जो है एक छोटा सा बॉक्स कर। यस सर। वेरी गुड। हाँ वहाँ बाद में लिखेंगे, जो स्क्रीन का जो राइट टॉप कॉर्नर में रफ वर्क कर, वहाँ लिख। जैसे मैं बोल रहा हूँ, अंकिता सायंतन सुनो, उसको हेल्प करो। यस सर। रो टोटल कितना हुआ? सर 50 सर। वेरी गुड। लिख रहे सायंतन 50 इंटू 100। अरे डायरेक्ट वैल्यू लिख, 50 इंटू 100 upon 500 by 500 कितना हुआ? 10 है सर। हाँ वहाँ लिख 10 लिख, वो वैल्यू डाल उधर। ऑल ऑफ यू आर 12। क्लियर? सोमदीप, अरे सुन रहा है सोमदीप? यस सर सुन रहा हूँ। बोल ना 13 का कैसे करेंगे? 13 का एक्सपेक्टेड वैल्यू बोल। सर 13 का वो होगा 50 इंटू 120 डिवाइडेड बाय 500। वेरी गुड, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू मुस्कान। सर 12 होगा सर। और किसी ने किया? सब बाकी सब फिलअप करो। सर मैंने कर लिया सर, मैंने सारा कर लिया। बोल दे अंकिता, रो वाइज बोल दे अंकिता। हाँ सर 17 का 15 होगा, 11 का 13 होगा, फिर 63 का 6 होगा। नीचे अमोग नीचे 63 का सॉरी 60, then 72, then 90, then 78 नीचे। वो नहीं चाहिए, लास्ट कॉलम नहीं चाहिए। 30, then 36, 45, then 39. Anybody having doubt up to this? Amog? Yes sir. ये स्क्रीन चाहिए, don't delete it, but you stop sharing, allow me so that I give some input, then you take over. Can you stop sharing but don't delete?
से स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, एक सेकंड। हाँ हाँ हाँ। नहीं स्क्रीनशॉट ये सेव ऑप्शन, यस सर। नहीं डिलीट नहीं होगा, रहेगा ना। अच्छा ठीक है सर, ठीक है सर, आई विल स्टॉप शेयरिंग देन। ये जो टेबल अमोघ ने किया, सभी लोग ध्यान दो, दिस इज कॉल्ड टेबल नंबर 1 और इसमें हम ई वैल्यू निकाले। ओके, नाउ इफ यू आर गेटिंग chi-square टेस्ट इन एग्जाम, then we have to go for table number 2. In table number 2, you don't forget the chi-square formula. Ansika, what was the chi-square formula? Summation O minus E whole square by E. ये देखो, only सौरभ will tell. ये जो वैल्यू है सौरभ, इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए? अभी देख यहाँ स्क्रीन देख, ओ वैल्यू यहाँ लिखेंगे कॉलम वाइज। अमोघ सुन रहे, ध्यान दे, डाउट है तो मुझे पूछ, यू हैव टू सॉल्व इट। वो वैल्यू जो कंटीजेंसेबल था उसको अनग्रुप करके एक ही कॉलम में रखना है, ठीक है अमोघ? और साइड बाय साइड ध्यान दे, ओनली रेस्पेक्टिव ई वैल्यूज, देन ओ माइनस ई। सर और एक बार बोलिए ना सर, समझ में नहीं आया सर। टेबल जो कंटीजेंस टेबल में है डाटा, उसको अनग्रुप करके एक ही कॉलम में, इन वन कॉलम यू पुट इट, राइट? देन साइड बाय साइड यू राइट द एक्सपेक्टेड वैल्यूज। अमोघ करेगा, तारा सुन, देन यू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन ओ माइनस ई, ठीक है? सौरभ, इसके आगे कौन सा कॉलम रहेगा रे? सर O minus E का स्क्वायर। O minus E whole square। अंकिता, नेक्स्ट कॉलम क्या होगा रे? O minus C square O upon E. minus E square by E। वेरी गुड। और ये जो कॉलम आएगा लास्ट कॉलम, इसका लास्ट कॉलम का टोटल को क्या बोलेंगे हम? यही का स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर। यस सर, एक्स का स्क्वायर। एक्स नहीं रे, का स्क्वायर सर। अंकिता, ये जो क्वेश्चन मिला यहाँ तक हमने क्या क्या किए, समराइज कर, जल्दी बोल। और अमोघ, यू अंकिता कंटिन्यू, अमोघ यू कंटिन्यू विथ योर स्क्रीन शेयरिंग। अंकिता बोल। Sir, first in the question, the observed value was given, and from that we found out our row total and column total. Then we calculated the expected value, and now we have made a table where we have to summarize all the observed value, expected value, O minus E value, O minus E square value, and O minus E square by E value. अमोघ सुन रहे, जो राइट हैंड साइड में जो रफ कॉलम किया ना, इसको डिलीट कर दे, वही हम करते हैं, ठीक है? यस सर। तो इसमें सेलेक्ट होके एक बार में नहीं होता है? नहीं, वो माइनस ये करना, वो छोड़ दे उसको। अंकिता, मुस्कान और अंशिका, यू डू इट इन योर नोटबुक, यू शुड हेल्प अमोघ। Yes, sir. Yes, sir. Amog, start doing. First you write O. Then you write E. बाकी लोग ध्यान दो कैसे अमोघ कर रहा है। अमोघ, should we write column wise or row wise? So column wise, sir. Column wise. Any way you can do, Column but wise. you can do any way. Listen to me. Column wise, row wise, any way you can do, but accordingly you have to put also the values. अंकिता, सुन रहा है ना? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उसके साइड, अलग साइड you have to write that e value. ठीक है? अमोघ लेख। Yes, sir. O value लेख, फटाफट लेख। 9. ठीक है, लाइन खींच ले। अरे वो फर्स्ट रो के 17 से एक लाइन खींच अमोघ। 11. लाइन किस बीच में अमोघ? सर ठीक है ना? हाँ ठीक है, अभी ठीक है, बोल। ठीक है। 13, 17, 11, 63, 11 के बाद 59। हाँ। 63, 70, 85, 82, 28,
37, 48, देन 37 फिर से। फिर उसमें लिख 10, ई में लिख 10, 12, 15, 13, 60, 60, 72, 90, 78, 30, 36, 45, 39। वेरी गुड। अच्छा सुनो, किसी ने किया है ओ माइनस सी होल स्क्वायर? यस सर, यस सर, यस सर, ओ माइनस सी होल स्क्वायर बाई किया है सर, ओ माइनस ही किए हैं सर। अरे सुन अमोघ, ये डायरेक्ट ओ माइनस सी होल स्क्वायर बाई ई लिख दे, ओ हाँ। माइनस सी काट दे उधर से, लास्ट थर्ड वाला कॉलम काट दे। नहीं ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक और कॉलम डाल दे, एक कॉलम हाँ, रहने ठीक दे, है, वी आर नॉट ठीक फिलिंग है, इट आउट। ओके स्टेप ओके बाय सर। स्टेप करेंगे ना अमोघ, इसको स्क्वायर बन, हाँ यस, एक और कॉलम कर। तो सर मैं डायरेक्ट कर दिया था। हाँ नहीं, सुन दे, सुन। हाँ सर। रक्तिम, हाँ सर। अभी बोल, अमोघ को लास्ट कॉलम डायरेक्ट फिलअप करेगा, ठीक है? अभी ओके सर, ओके सर। 0.1, 0.08, 0.26, 0.37, 0.15, 0.277, 0.20, कौन स्पेस में लिख, जगह नहीं वगैरह अमोघ, कौन sir. स्पेस लेके लिख, हाँ लिख 0.13, 0.02, 0.2। अच्छा सुन, डॉट डॉट कर दे। एक ही सर है, 0.10 बस। अच्छा ठीक। 0.10। हाँ, नीचे लाइन खींच, टोटल कितना हुआ? 2.037। 2.037। अच्छा ठीक है सर टोटल एक्स स्क्वायर है ना सर? एक्स नहीं रे, काई स्क्वायर बोल। काई स्क्वायर, हाँ मतलब काय स्क्वायर है, काय स्क्वायर, एक्स स्क्वायर है। अंकिता, ये वैल्यू कैलकुलेटेड वैल्यू है या टैबुलेटेड वैल्यू है अंकिता? सर ये कैलकुलेटेड वैल्यू है। ऊपर लेख अमोघ, बिल्कुल ऊपर जो व्हाइट स्पेस है लेख, हियर वी फाउंड कैलकुलेटेड काई स्क्वायर इक्वल टू, पूरा ऊपर लेख जो व्हाइट स्पेस है टॉप लाइन में। अरे शुरू कर, लेफ्ट से शुरू करना, बिल्कुल लेफ्ट से, एक्सट्रीम लेफ्ट से शुरू कर। हियर वी फाउंड कैलकुलेटेड काई स्क्वायर टू बी, कितना मिला? 2.037। 2.037। सर ये वाला क्वेश्चन दे दीजिए सर, टेंशन है। दिस इज टू बी कंपेयर्ड विथ टेबुलेटेड वैल्यू। कैलकुलेटेड वैल्यू। ये 1%, 5% को दिया हुआ है। सर डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना पड़ेगा ना सर? वो तो करेंगे, नहीं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को दिया हुआ है क्या? सर ऐसा तो कुछ नहीं दिया है क्वेश्चन में। नहीं है अगर नहीं दिया तो मतलब यू कैन टेक एनीथिंग, यू कैन टेक 1% और 5%, ठीक है? डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है? यू वैल्यू 8%, अमोघ लाइक 8 5%, 5% कमा फॉर रक्तिम, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हुआ रे? सर 6 सर, 6 4 6 3 minus 1 into 4 minus 1, 6 DOF, अमोघ राइट, DOF ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू 6। रुक जाओ सभी लोग अपने अपने देखो काई स्क्वायर टेबल। 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में 5% टैबुलेटेड वैल्यू कितना है? सायंतन मिल रहा है? सायंतन है क्या? भाग गया? मिल रहा नहीं, भागेंगे कहाँ? बोलना कितना? 1.943। नो। और कोई अंकिता? 11.071। यस 11.07। 11.071। अरे अंकिता, सायंतन को बोल। 5%। अंकिता हाँ यस सर, यस सर। 1 to 1 एड्रेस कर। हेलो शांतन, वो ऊपर में दिया हुआ है
0.05 वहां का देखो 11 पॉइंट यही शो हो रहा है 11.071। ओ सर मैंने गलती किया था, मैंने टी स्क्वायर देख लिया था गलत। अच्छा सॉरी सॉरी। ठीक है सर अच्छा 11.071 और 12.592 12.599 होगा सर, 6% 6% में वो। तो कौन That's बोला why, yes sir. कौन बोला 11 यस सर, It is for 6%. Somebody saw 5. That's why. अच्छा ठीक। अलीशा थैंक यू डियर, थैंक यू अलीशा। Yes. अच्छा Yes, sir. इसके सर। आगे हमको क्या लिखना है? 1 मिनट रुक जा तारा, 1 मिनट रुक जा। डोंट फॉरगेट योर सर क्वेश्चन। 1 मिनट सर, ये 12.5 कैसे आया? अरे सर मेरा भी काई क्वेश्चन है। स्क्वायर में काई स्क्वायर टेबल में काई लिखा स्क्वायर, हुआ है। हाँ काई स्क्वायर टेबल काई में जाओ। स्क्वायर टेबल अच्छा सुनो पहले काई स्क्वायर हम लोग वो एज्यूम कर लिए क्योंकि क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया। सुन रहे बताओ कोई क्या हुआ? कोई टेबल शेयर करके दिखाएगा सो दैट इट विल बी क्लियर। हमको तेरे पास एक टेबल है? यस सर सर मेरे पास भी है। शेयर कर दे फटाफट, तो हेल्प कर। सर इसको स्टॉप शेयर करना होगा क्या? हाँ करके फिर से दिखा सकता है ना। यस सर। अलीशा अलीशा शेयर कर दिया। Visible. रुको अभी तक Sir, नहीं is आया। visible. आ रहा है। नहीं खड़गपुर पार कर गया गाड़ी। तुम्हारा नेट थोड़ा स्लो इसलिए थोड़ा लेट से आता है। भुवनेश्वर से चल दिया सर। Is it visible now? अलीशा नहीं विजिबल नहीं है। तेरा लो नेटवर्क है रे। हाँ अभी आया। अभी विजिबल हुआ। अभी कर्सर मूव कर। ओहो क्यों बंद कर दिया रे? गाड़ी पटरी से उतर गई। तेल्ला सरियोला सर। हाँ तेल्ला सरियोला सर। now all of you are clear? हाँ 12. लिमा है क्या? हाँ सर मैं हूँ। अरे अभी क्लियर है ना? हाँ या ना बोल ना जल्दी। सर कुछ समझ नहीं आया सर। 0.05 है वहाँ पे, तो 5% क्यों लिए सर? 5%? 1/100 का 0.05 ही तो आएगा। एज्यूम कर लिए। नहीं सर 5% क्यों लिए क्वेश्चन में सर? कुछ नहीं दिया है। क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया तो एज्यूम कर लिया। अंकिता पहले तो तारा शंकर सुन ले, क्या डाउट है उसका। तारा बोल रहे सर 5% क्यों लिए वही पूछ रहे थे सर। हाँ क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं मेंशन किया गया है तो यू कैन टेक इधर 1% और 5%। हमने बोला कि 5% लो, इसलिए हम 5% देख रहे हैं। Now, सर next, हम लोग तो यहाँ पे सर यहाँ पे हम लोग सर 1% भी ले सकते हैं, 8% भी ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं। अगर 1% लेंगे समझदीप क्या होगा? सर मैं वही सोच रहा था कि उस टाइम पे हम लोगों ने 1% लिए थे। पहले सुना कर रहे, सुन तो ले। अगर जो आंसर हो रहा है ये हम एक्सेप्ट कर रहे हैं ना, नौला पे तो एक्सेप्ट कर रहे हैं ना अंकिता। अंकिता सुन, यस सर। अगर 1% होगा वही तो आंसर होगा ना, वही भी नौलापति एक्सेप्ट होगा ना। आंसर में कुछ अंतर हो रहा है? नहीं सर। हाँ वही बोल समरदीप को, ताराशंकर को बोल। अभी सुनो, बाकी लोग सुनो। सुन पहले सुन। सर 1% लेने से तो वो 16.812 आ जाएगा ना। भाई थोड़ा सुन ना। हाँ अरे सुन रहे। अरे रुको तुम साइड से पूछ रहा हूँ मैं। अरे सुन रहे समरदीप, जो कैलकुलेटर वैल्यू मिला वो बहुत कम है, वेदर 1% और 5%। आंसर वही मिलता है कि यू एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस। हमने नल हाइपोथेसिस क्या लिए थे कि कोई असर नहीं है, कितना भी ब्रांडेड टूथपेस्ट करो वो कैविट के लिए चेकिंग के लिए वो नहीं है, वो मेडिसिन नहीं है, टूथपेस्ट है। तो वही बोल रहे हो, वेदर 1% और 5% आंसर सेम ही आ रहा है। सो हियर नो कंफ्यूजन। अच्छा सर एक चीज बोलूं बोल। सर 1% लेने से तो हम लोग 16.812 लेंगे ना। हाँ तो क्या होगा बोल, नेक्स्ट सेंटेंस बोल। सर 12 यहाँ पे तो 12.592 और वहाँ पे 16. टैबुलेटेड वैल्यू बहुत कम था। टैबुलेटेड वैल्यू तो हम लोग का आया था, हम लोग कैलकुलेशन करके 2.037 कैलकुलेटेड वैल्यू। हाँ कैलकुलेट भी आया था 2.037। हाँ वो तो बहुत कम है, मतलब हाँ उसके हिसाब से। हाँ ठीक है समझ गए।
सायंतन 1 to 1 समझ को समझा, समझ क्लियर? समझ गया मैं। हाँ मतलब उससे तो मतलब बहुत ही ज्यादा है। हाँ 12 भी इसलिए हो कुछ 16 कुछ हो भी ले क्या सेम ही आएगा। सर वो मैं को समझ में नहीं आया सर, नहीं आया, सही बोल रहे हैं सर, नहीं आया, वो आधा उधर बोल रहे हैं। सायंतन 1 to 1 बोल, जल्दी बोल भाई देख तेरा कैलकुलेटर वैल्यू था 2.037, ठीक है अमोघ भाई तो है। हाँ भाई बोल, हाँ 2.037 ठीक है। हाँ ठीक है, अभी एट 5% में 12 अराउंड कुछ आ रहा था एंड इफ तू 1% लिया तो 16 आ रहा था। अभी दोनों ही देख वैल्यू तो बहुत कम है, मतलब तेरा तो इफेक्ट कुछ नहीं होगा। तू अभी उसको 12 ले और 16 ले, बात तेरा सेम ही होएगा। अमोघ अंडरलाइन द कैलकुलेटेड वैल्यू, जो कैलकुलेटेड वैल्यू को अंडरलाइन कर अमोघ। 2.037 लिखा हुआ है। ताराशंकर देख, ये है कैलकुलेटेड वैल्यू, इसको डिफरेंट कलर में अंडरलाइन कर रहे हैं अमोघ, डिफरेंट कलर में अंडरलाइन कर। सर हाँ सर पता चल गया सर। ठीक है, क्लियर? यस सर। सो व्हाट विल बी द सर, और जो एक जस्ट अ मिनट सर, और जो सर 6 डिग्री ऑफ, सुन ताराशंकर सुन, यू आंसर माय क्वेश्चन, व्हाट विल बी द नेक्स्ट सेंटेंस? Sir, at 5% for the 6 DOF, I'm asking that sir. Why we take 6 sir? 6 DOF, degree of freedom. अरे you are not answering my question and you are asking a question. वो तो बाद में डिस्कस करेंगे ना। नेक्स्ट सेंटेंस क्या होगा बोल रहे तारा? अश्विनी, आर यू क्लियर और ये आंसर हो रहा है? नहीं सर, समझ रहा हूँ सर। तो तारा को बोल ये 6 कैसे मिला डिग्री ऑफ फ्रीडम? फॉर्मूला सर बताए थे ना निकालने के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये वाला का स्क्वायर। तारा को 1 to 1 एडजस्ट कर। हाँ तारा सर जो बोले थे फॉर्मूला इसका का स्क्वायर जब मेथड से कर रहे होंगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है रो -1 इंटू कॉलम -1। यहाँ पे रो कॉलम 4 और 3 है तो 4 - 1 इंटू 3 - 1 6 आया है डिग्री ऑफ फ्रीडम। ओ अच्छा अच्छा, हाँ 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 समझ सर, यस यस सर। ठीक है, तो अश्विनी बोल रहे हैं नेक्स्ट सेंटेंस क्या लिखेंगे? अश्विनी फटाफट बोल। नेक्स्ट सेंटेंस, since calculated value is less than tabulated value, we accept the null hypothesis. बाकी लोग लिखो and we conclude that checking of cavity has nothing to do with use of branded toothpaste. ये बोलो जो टॉल क्लेम कर रहे हैं कंपनी वालों ने, इसका कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है? It has nothing to do with use of branded toothpaste. Stop sharing Amog, stop sharing. Thank you sir, thank you so much sir. Okay, give me just 2-3 minutes, then we'll be thank you all for your cooperation. आप लोगों ने बहुत ध्यान से सुन रहे हो, I'm so happy. Now अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, कोई फटाफट इसका मीनिंग बोलेगा? सर इस क्वेश्चन में दिया गया है दैट कितने सेल्फ मतलब हम लोगों को चेक करना है फर्टिलाइजर से यूज करने से कितना इज देयर एनी इफेक्ट इन द फार्मिंग और नॉट? और कोई बोलेगा, सप्लीमेंट करेगा? Sir, it's about that we have to see that if find out that if self owner of lands self owning land farmers are using more inclined to using fertilizers or not. That is better. अंशिका, ये अंकिता, अश्विनी जो बोल रहा है ना वो थोड़ा बेटर है। मैं थोड़ा ट्राई करूं अश्विनी, जो आजकल जो खेती है ना, अपना खेती नहीं है, मैं फर्टिलाइजर क्यों यूज करूं, बहुत खर्चा है, रिस्की है। अंकिता सुन रहा है? तो इज इट द ओनरशिप स्टेटस व्हिच इज समथिंग लाइक ए डिटरमिनिंग फैक्टर, जहां फार्मर्स यूज करें ना करें, इस सोच कब आता है? अरे मेरा खेती नहीं है, मैं क्यों यूज करूं, वो प्रोडक्शन होगा नहीं होगा, मैं क्यों करूं? So use of owner, has it anything to do with ownership of the land? ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे? सौरभ 2 मिनट में बोल।
इस टाइप का क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? अनम्यूट करके तो बोल ना, गाली दे रहा है। नहीं सर, वो म्यूट नहीं बता। वो सर इसका भी वो निकालेंगे सर, आरटी पूरा सबका, और सर उसके बाद फिर एक नया टेबल बनाएंगे, ओ माइनस ई और ये ओ माइनस ई का होल स्क्वायर और चाई स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे सर। नहीं, पहले इसका ई वैल्यू यहीं डालेंगे, ए टेबल में डालेंगे, ठीक है? हाँ डालेंगे सर, यस सर। उसके बाद टेबल 2 सर करेंगे। हमको रो टोटल कॉलम टोटल निकालने का जरूरत नहीं है सर, दिया हुआ है क्वेश्चन में। राइट। नहीं, मैं बोल रहा हूँ ना अंकिता, यहाँ जो ई वैल्यू कंप्यूट करने के लिए, यस सर, ई वैल्यू यहाँ कंप्यूट करके डालो, ये टेबल 1 हो जाएगा और टेबल 2 में सीधा अनग्रुप करके एक कॉलम में डालो, ठीक है? एनी क्वेश्चन अप टू दिस? नो सर। ये क्वेश्चन आप लोग थोड़ा दया करके सॉल्व करके मुझे भेजोगे आज द लास्ट असाइनमेंट ऑफ 51 हो जाएगा? यस सर, यस सर, यस बट और एक बार दिखाएंगे देन फोटो सर, बट एक बार दिखा देंगे, तो एक स्क्रीनशॉट बार ले लेंगे। क्वेश्चन दिखाई। नहीं, मैं तो ये शेयर कर रहा हूँ Yes, ना, sir. ये पीपीटी चला जाएगा आपके पास, ये पीपीटी मिल ओके जाएगा। सर, ओके Yes, सर, sir. कब देंगे? हाँ। So those who are sincere, I'll be more happy if you can please solve very neatly both the chi-square example, जो दोनों Yes, हमने एक सॉल्व किए और ये जो मैंने दे रहा हूँ दोनों को करके भेज दो, ठीक है? ठीक है सर थैंक यू। कितने बजे कब तक भेजना है सर?